Very warm welcome to Yogi Ram podcast. Today we have a special guest, Dr. Rudresh Mahesh Shastri ji. Dr. Rudresh Shastri ji is renowned Vedic astrologer. He is also a principal of Sri Maharshi College of Vedic Astrology and Research and Development in Vedic Studies. Sir has published 13 international research papers and 2 national research publications. Today's podcast will be a blend of traditional with scientific rigor, ensuring that Vedic astrology remains a relevant and educational tool in today's world, guiding future generation toward a better life enriched with spiritual blessing. Very warm welcome रुद्रेश सर, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much, sir. Thank you, Yogesh ji. It was a great introduction about mine, and also, most importantly, the Vedic astrology in collaboration with the scientific methods like data mining is there and statistical analysis is there. So we are going to have the podcast on this particular topic called the study on gender determination through Vedic astrology using data mining techniques. Great, sir. Great, sir. Sir, moving to the first question, when did you first become interested in astrology and what was the driving force behind that? Sir, वो जर्नी, वो तपस्या, सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए. See, basically, I am born in a Brahmin family in Gujarat in 1986, and the district is Jamnagar, where my father and his own knowledge background is from the Vedic literatures itself, where he does the rituals of all the 16 sanskars, and also he is well known in the astrological field in North India. And by 1980s, he traveled to South India, Tamil Nadu, and got settled in Coimbatore. So he had an opportunity to serve in a temple, and from there, the journey of the whole family starts. Right. I have 2 elder brothers, Prahlad Shastri and Amrish Shastri. My father's name is Mahesh Shastri and my mother's name is Lata Shastri. And myself, Dr. Rudresh Mahesh Shastri. And to be very frank and to be open to this particular platform, we basically understand the Vedic rituals in our daily life events. Like we have the marriage, we have the naming a child, how to give the guidance on the career. So all these things are a part of astrology, and astrology is the Pancham Veda, where we see that all the 16 sanskars are in relation with the astrology. So whether it is a Garbha sanskar or the Namkaran sanskar, so many sanskars are in connection with the Vedic astrology. Even the last sanskar, that is the Antim sanskar, is also based on the Vedic astrology, where we see the tithi and the rituals are performed based on the different tithi. And basically, I came into this particular astrological field in my childhood, where my father used to predict in the traditional form, where the general society used to approach my father by giving their horoscopes, and he generally calculates the horoscopes and then he gives the predict. And one important predict which I came to know while the conversation was happening in my home, during that time I was in 7th standard. The horoscope was given and he calculated it. He asked a few questions. Generally the astrologers do ask questions to cross check whether it's true or false. The details are true or false, right? So those kind of questions were put up. So in which one question was very catchy to me, and it took my attention. Like for example, you're wearing these spectacles, right? So do you think is it possible to predict which eye has got the more or less power through astrology? That is what he predicted, right? Oh, so this kind of prediction in 1999 took me to this particular field, where just by having the date of birth, time of birth and place of birth, and a Vedic horoscope with a Panchanga, how is it possible to predict the eye power, whether it is the left eye or the right eye? Which is which makes a sense actually, to believe this particular occult subject or to just leave it like that. Because you see, हमारे भारत में सदियों से यह मान्यता है कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो सच्चा रास्ता दिखाता है, ज्योतिष हमें सच्चे मार्ग पर ले जाते हैं, अच्छे एडवाइस देते हैं फॉर बेटर लाइफ. तो जब मेडिकल
का जो रिपोर्ट जो है, जो आई टेस्टिंग का, तो उसके साथ एक हॉरोस्कोप को कंपेयर किया जाता है, एंड द रिजल्ट्स आर ट्रू. सो दिस brought me to this level where I can trust the astrology, not blindly, but with the support of the science, where we can now like definitely understand the essence of our Vedic literatures. It's not only about the Vedic astrology. It also has the importance of the like Vastu Shastra, even the palm reading, because we understand the occult science or the like astrological field. Somewhere it needs the comparative study with the scientific background, or with the science background, or with the mathematical calculations, right? So this particular question, like whether you have the right eye or a left eye, I do not remember which eye was that, but the prediction was so true that I was not like convinced. Totally, I was convinced by this particular prediction. तो जब मैं 7वीं क्लास में था, तब से ये अनुभव रहा है कि मुझे ज्योतिष के बारे में जानना है और ज्योतिष पढ़ना है, ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना है, राइट? एंड ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट not because of my father is a Brahmin, not I'm from not because of the particular brought up, जहाँ एक ब्राह्मण के घर में पंचांग का तो इस्तेमाल रोज होता है, तिथि देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, है ना, ये सब देखने के बजाय आई डिडंट बिलीव ब्लाइंडली. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो बहुत कुछ है इसमें. ज्योतिष शास्त्र में इतना बड़ा शास्त्र है जो 16 संस्कारों से जुड़ा हुआ है, और पंचम वेद हम मानते हैं इनको. और ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, इट इज फॉर एवरीवन. दैट इज व्हाई आई टुक दिस पर्टिकुलर field in like building my career in like also I have the future plans for doing certain research, जहाँ एक टेस्टिंग होता है as per the like research methodologies, अलग अलग मेथड्स को यूज किया जाता है. तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, जहाँ साउथ इंडिया में आप जानते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द वेल नोन like methodology which is far advanced. और ट्रेडिशनल सिस्टम जो है हमारा ज्योतिष शास्त्र का, जो पाराशरी बृहद पाराशर शास्त्र जो है, उससे भी मैंने सीखा हुआ है. और इस शास्त्र को सीखने के लिए काफी सारा समय भी लगा है, काफी सारी मेहनत भी लगी है, और अलग अलग मेथोडोलॉजी जो है वो हमें सीखना जरूरी है. क्योंकि जब कोई प्रिडिक्शन हमें करना है तो एक मेथड से आप करिए, दूसरे मेथड से चेक कीजिए, फिर प्रिडिक्शन करने से क्या होता है कि आपका सक्सेस रेशियो जो है वो और भी आगे बढ़े. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जैसा आपने रिसर्च के बारे में बताया, सो व्हाट इंस्पायर यू टू एम्बार्क ऑन योर रिसर्च जर्नी एंड हाउ इट हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स? सर, इसके बारे में बताइए. पब्लिकेशंस आपके जो हैं 13 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर किए हैं, तो नेशनल किए हैं. सर, इसके बारे में प्लीज बताइए. बिल्कुल. सो आई एम ब्लेस्ड विथ द बर्थ इन द ब्राह्मण फैमिली. एज आई सेड, आई स्पीक 4 लैंग्वेजेस. गुजराती जो मेरी मदर टंग है, और तमिल जो तमिलनाडु स्टेट लैंग्वेज है, एंड हिंदी विच इज लाइक नेशनल लैंग्वेज, और इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है. तो इन चारों भाषाओं में मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं. एंड बेसिकली कोयम्बटूर जो है इन तमिलनाडु, इट इज अ हब ऑफ द लाइक रेगुलर एंड डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जहाँ करीबन 4 और 5 यूनिवर्सिटीज हैं, और काफी सारे कोर्सेज किए मैंने ज्योतिष शास्त्र में. जहाँ श्री महर्षि कॉलेज ने मुझे एक मौका दिया 2004 में कि आई कैन लर्न द वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर. बुक्स तो बहुत सारी है मार्केट में, उससे आप ज्योतिष नहीं पढ़ पाएंगे, राइट? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और बात रही कि जब ज्ञान प्राप्त करना होता है ना, तो गुरु का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है. वेरी ट्रू. नो डाउट. मैंने मेरे पिताजी से ज्योतिष शास्त्र सीखा है, और केपी बुक्स भी मैंने परचेज किए, केपी के क्लासेस भी मैंने अटेंड किए हैं, जहाँ मुझे ऐसा लगा कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही अहम होने वाला है भविष्य में. बिकॉज आई एम नॉट ओनली लाइक विद द एजुकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आई एम बेसिकली द लाइक डिग्री होल्डर ऑफ बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. फिर उसके बाद मैंने MBA किया, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कोयम्बटूर इन श्री नेहरू महाविद्यालय. और देन आई डिड द MSc अप्लाइड साइकोलॉजी फ्रॉम भारतीय यूनिवर्सिटी अगेन इन कोयम्बटूर तमिलनाडु. तो जहाँ हमें इतना सारा लाइक मौका मिल रहा है ज्ञान प्राप्त करने का, तो इट इज लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मेरी जर्नी जो है वो ज्योतिष शास्त्र में प्रॉपरली स्टार्ट हुई श्री महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उदयपुर, राजस्थान. तो ये शुरू हुई मेरी
2004 से डिस्टेंस एजुकेशन में मैंने किया था। फिर ग्रेजुअली मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा किया था। फिर उसके बाद मास्टर्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी किया। फिर उसके बाद पीएचडी किया। सो दिस इज द opportunity which I got to learn the Vedic astrology courses in distance mode of education। तो रिसर्च का अभी ऐसा है कि आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो कुछ सवाल ऐसे हैं कि आप ज्योतिषी से आप कितने सवाल पूछ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा है, समंदर है, और जो मैं जानता हूँ वो एक लोटे की जितना ज्ञान है। इट इज जस्ट अ ड्रॉप ऑफ एन ओशन, राइट। तो आप एक ज्योतिषी से कितने सवाल पूछ सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, है ना। हर एक इंडिविजुअल कुछ ना कुछ सवाल लेके आते हैं, जहाँ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है ना। कि मेरी की शादी कब होगी, राइट। मेरा अगर करियर बनाना है तो कौन से फील्ड में सेलेक्ट करूं, साइंस ग्रुप में जाइए या फिर आर्ट्स ग्रुप में जाइए, बिजनेस करूं या फिर नौकरी करूं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, राइट, विच मेक्स अस अंडरस्टैंड कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें होना चाहिए। द रीजन इज देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ हॉरोस्कोप। जैसे कि हमारा ये फिंगरप्रिंट है ना, तो वो रिपीट नहीं होता। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप्स रिपीट नहीं होते। देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ प्लैनेटरी पोजीशंस आल्सो, राइट। और बात रही कि आप रिसर्च पर्सपेक्टिव में कितने सवाल पूछते हैं, रिसर्च करना कोई आम बात नहीं है। वेरी ट्रू, है ना। क्योंकि देखिए, आपने सुना होगा या फिर जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्होंने भी सुना होगा कि एक दिन में कई बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन सबका तकदीर अलग अलग है। मैं तो यहाँ तक मैं पढ़ाई कर चुका हूँ कि जुड़वा बच्चे जो है उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी अलग अलग है। जो ज्योतिष शास्त्र के थ्रू देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू प्रिडिक्ट इट, इवन दी ट्विंस डिफरेंस। तो इतना गहरा ज्ञान है जो हमें आशीर्वाद के तौर पे हमें मिला है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2 कि आप रिसर्च को कौन से नजरिए से देखते हैं और कितने सवाल है रिसर्च के ऊपर। और तीसरा सवाल, जो सवाल आप लेके बैठे हैं, जो एक सोसाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो उसको हम किसके साथ कंपेयर करके कर सकते। अगर मुझे कुछ टेस्टिंग करना है तो कहीं ना कहीं मुझे एक कंपैरेटिव बेस तो होना चाहिए। सो हाउ डू आई कंपेयर द पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन विद द कांस्टेंट थिंग्स, है ना, जहाँ वेरिएबल्स है, कोई रिपीटेशन नहीं है, तो उसको हम एक कंपैरेटिव बेस देना जरूरी है। और बात रही फोर्थ क्वेश्चन की, तो हाउ टू सपोर्ट द सोसाइटी। मान लीजिए कि वो पर्सनल प्रॉब्लम एक के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे के साथ नहीं होगा करके, उनके साथ भी हो सकता है। कॉमन इश्यूज कैन बी एड्रेस्ड, है ना। तो उस प्रॉब्लम को लेके अगर आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो सोसाइटी को क्या वो फायदा होने वाला है। दैट इज द रिसर्च पर्सपेक्टिव थॉट प्रोसेस। जहां आप R&D की बात कर रहे हैं, जैसे कि दवाइयां आजकल बनाई जाती है ना, कई कंपनियां दवाइयां बनाती है, राइट। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो सेम रहेगा, राइट। एंड the next question is on the possibility to predict the event and compare it with the current reports। मान लीजिए कि अगर मैंने कोई प्रिडिक्शन किया है तो उसका कंपैरिजन मैं कहाँ करूं। कंपैरिजन मैटर्स अ लॉट। टेस्टिंग करना जरूरी है। जहां एक सॉल्यूशन मिला है आपको तो उसका टेस्टिंग भी तो होना चाहिए कि ये सबके लिए सही है या गलत है। दैट इज ऑल्सो नो लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और बात रही लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की कि क्या ये वाकई में एक अच्छा सा एक सॉल्यूशन दे पाएगा, either थ्रू रेमेडीज और थ्रू दी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिडिक्ट इन द नियर फ्यूचर। मान लीजिए कि अगर मैंने रिसर्च किया मैरिज के ऊपर, है ना, तो मैंने आप बता दिया कि आपकी शादी होने वाली है, कौन से डायरेक्शन से आएंगे वो भी मैंने बता दिया, है ना, एज डिफरेंस क्या है वो भी मैंने बता दिया, इस समय से लेके इस समय तक आपकी शादी होने वाली वो भी मैंने बता दिया। पहले के जमाने में तो फलकथन लिखते थे, तो यूज्ड टू राइट द प्रिडिक्ट कि इस साल में आपकी शादी होगी करके, और होती थी। आज भी ऐसा ही है ना। तो इस फील्ड में फीडबैक जो आ रहा है ना कस्टमर्स से, वो बहुत कम आ रहा है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक आई कैन से। जहाँ जनरल सोसाइटी को एक ज्योतिषी का प्रिडिक्शन कितना सक्सेस है, कितना फेलियर है, वो एक फीडबैक भी देना चाहिए, और मैं मांगता हूँ। तो कई सारे प्रिडिक्शंस ट्रू निकले हैं, फिर उसको हम प्रॉपरली एक कंप्लीटेड रिसर्च के तौर पे हम पब्लिश भी करते हैं। जहां आपने बताया कि मैंने 13 पेपर्स मैंने पब्लिश किए हैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ज्योतिष रिसर्च में, विद द सपोर्ट ऑफ द श्री महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, राइट। और इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट जो है वो बहुत बढ़िया लाइक रहा है मेरे लाइफ में, बहुत एक बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए। और खास करके जो प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं सोसाइटी में related to career, related to the knowledge education, related to the finance, related to the investment, related to the business, तो ये सारे जो रिसर्च के टॉपिक्स जो हैं उसको हम एक अलग ही नजरिए से देखते हैं R&D के तौर पे, जहाँ वेरिएबल को समझना जरूरी है, कांस्टेंट को समझना जरूरी है, फिर उसका टेस्टिंग होता है
थ्रू द डेटा माइनिंग टेक्निक्स। आजकल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ काम कर रहा है ना, अगर मान लीजिए कि अगर आपने अमेजोन में कोई भी शर्ट या फिर कोई भी एक ब्लेजर आपने सेलेक्ट किया है ना, तो आपका नेक्स्ट सर्च जो है उसी टैगलाइन के हिसाब से, उसी प्राइस स्केल के हिसाब से आपको दिखाई देगा। सो दैट इज वन ऑफ द डेटा माइनिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, आपके इंडिविजुअल सर्च के ऊपर मैं आपको बताऊं, राइट। तो हम वैसा ही कुछ करते हैं कि मान लीजिए कि 100 हॉरोस्कोप्स हमने कलेक्ट किए, उसमें एक पैटर्न दिखाई देता है। जब भी हम डेटा माइनिंग करते हैं ना, तो उधर एक पैटर्न दिखाई देता है। डेटा माइनिंग में भी बहुत सारे मेथड्स हैं, अलग अलग मेथोडोलॉजी है ना। जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने समझा कि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, फिर उसके हिसाब से हमने डेटा माइनिंग किया। देन वी केम टू नो कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो पुरुष है या स्त्री है। यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस। यस। और जब भी मैंने ये प्रोजेक्ट का थीसिस के लिए डॉक्यूमेंटेशन शुरू करेगा, तो कॉलेज की कमिटी ने, श्री महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कॉलेज कमिटी ने, दे रिजेक्टेड माय प्रोजेक्ट। द रीजन इज, एज पर द पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994, राइट राइट राइट, आप गूगल भी कर सकते हैं, 1994 में पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है वो जेंडर डिटर्मिनेशन करने नहीं देता। राइट राइट राइट। मेडिकल डॉक्टर हो या नो लाइक एनी नो लाइक मेडिकल रिलेटेड पर्सन, जहाँ वो मशीन से अल्ट्रासाउंड स्कैन से जो स्कैन करके वो बताते थे पहले, लेकिन 1994 से वो बंद हो गई, राइट, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन दैट। और वो अच्छा भी है, क्योंकि कई फीमेल फोर्टिसाइड्स होते थे, बच्चियों को गर्भ में मारा जाता था, जिनका जन्म ही नहीं होने देते थे, विच वॉज वन ऑफ द नो लाइक वेरी बैड थिंग विच हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, राइट। तो जब मैंने ये रिसर्च का टॉपिक मैंने सबमिट किया, डॉक्यूमेंटेशन बनाने लगे, तो कॉलेज कमेटी ने मेरा ये रिसर्च रिजेक्ट किया था कि आप ये नहीं कर सकते। और मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि ये प्रोजेक्ट करना ही। ओके। द रीजन इज, अगर आपको ज्योतिष शास्त्र को टेस्टिंग करना है तो कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि आपकी शादी होने वाली है, उसका तो कोई प्रूफ नहीं है ना। हाँ, इन्विटेशन इज वन ऑफ द प्रूफ, बट इज इट साइंटिफिकली वैलिड? दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या वो साइंटिफिकली वैलिड है? इन्विटेशन जो है वो साइंटिफिकली वैलिड नहीं मानते आरएनडी में, राइट। और बात रही कि आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां आईवीएफ के ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, है ना, वहां भी जाकर मैंने कोशिश की कि मैं डेटा कलेक्ट करके लीगली आई हैव टू डू दिस प्रोजेक्ट। फिर एडवोकेट से मिले, कई एडवोकेट्स हैं इसमें जो है मुझे लाइक सपोर्ट किया है। और फिर मुझे ये पता चला कि अगर बच्चा ऑलरेडी पैदा हो गया है, उसका तो जेंडर सेम होगा। मान लीजिए एक एक दिन का ही बच्चा क्यों ना हो, जेंडर तो सेम होगा, जेंडर तो बदलने वाला नहीं है। और आज का साइंस जो है वो इतना भी आगे नहीं बढ़ा कि वो गर्भ में जाके लिंग बदल दे, स्त्री को पुरुष कर दे या फिर पुरुष को स्त्री कर दे, ऐसा भी नहीं हो सकता, राइट। तो उधर बात रही टेस्टिंग की। जैसे कि मैंने मेरा खुद का हॉरोस्कोप इसमें लिया हुआ है, मेरा जन्म हो चुका है, आई एम अ मेल पर्सन, है ना, राइट। मेरी बहन का भी लिया, कजिन सिस्टर का लिया। मैंने फाइंड आउट किया विथ मल्टीपल नो लाइक एंगल्स, मल्टीपल इसमें लाइक एंगल्स देखने पड़ते हैं कि पहला बच्चा अगर पुरुष है, दूसरा बच्चा अगर स्त्री है, तो ये पॉसिबिलिटीज कैसे बनी। इवन दैट इज ऑल्सो टू बी केप्ट इन माइंड। तो ऐसे डेटा मेरे पास आए, जहां मैंने डेटा कलेक्शन करना शुरू किया कि अगर बच्चा पैदा हो गया है, देन यू कैन गो फॉर द रिसर्च। बच्चा पैदा होने से पहले प्रिडिक्शन करना मना है, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद प्रिडिक्शन करना इलीगल नहीं है, लीगल है। तो ये एडवाइस जो है वो मेरे लीगल एडवाइजर ने मुझे एडवाइस किया था, और फिर डेटा कलेक्शन शुरू किया मैंने। देन दी प्रोजेक्ट मूव ऑन। और बात रही टेस्टिंग की, जहां मैथमेटिकल टर्म्स एंड कंडीशंस जो है एस्ट्रोलॉजी में, वो कई लोग समझ नहीं पाते हैं। मैथमेटिक्स का एक स्ट्रॉन्ग रोल है इन एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ। जहाँ आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो हमें बहुत इजीली वी गेट दी नो लाइक हॉरोस्कोप्स इन फ्यू मिनट्स। आपको लाइक सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में अगर आप देखें कि लाइक एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर्स जो है वो मार्केट में बिक रहे हैं, देयर एक्यूरेसी लेवल इज गुड। तो हमने हाल में एक रिसर्च कंप्लीट किया था बेस्ड ऑन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो हमने क्रॉस कंपेयर किया विद दी राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग करके है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सारे साइंटिस्ट है वहां पे, साइंटिस्ट बैठ के राष्ट्रीय पंचांग का कैलकुलेशंस करते हैं, उसका मेथोडोलॉजी वो जानते हैं, है ना। जहाँ वेदर का रिपोर्ट ये वो वगैरह वो सब देते हैं, राइट। क्लाइमेट के बारे में देते हैं, वेदर का रिपोर्ट देते हैं, राइट। तो ये जो पंचांग जो है राष्ट्रीय पंचांग, इट इज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो उसको हमने कांस्टेंट रखा, जो एक गवर्नमेंट का डेटा है उसको हमने कांस्टेंट रखा, और कुछ सॉफ्टवेयर हमने कलेक्ट किए और उसके ऊपर हमने टेस्टिंग भी किया कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है।
and we published that particular paper recently in International Journal of Jyotish Research. और बात रही कि जब भी हम रिसर्च के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना, तो उधर एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, तभी तो आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि जब भी वेरिएबल लाइक चेंज होगा ना, तो उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा. दैट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिसर्च पर्सन, है ना. तो सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने शुरू किया कि मैनुअली, जहां मुझे इतना ज्ञान नहीं था, रिसर्च में बहुत कुछ सीखा मैंने, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है कि आपको जितना आप लाइक इसमें गहराई में जाएंगे ना, इन डेप्थ, उतना ही आपको मजा आएगा. और रिसर्च पर्सन के लिए उतना ही लाइक एक्यूरेसी भी मिलती है. जितनी आप गहराई पे जाते हैं ना, उतनी एक्यूरेसी मिलती है, राइट. देन आई कनेक्टेड द हॉरोस्कोप्स विच इज जनरेटेड बाय अ सॉफ्टवेयर. उसमें कोई मैनुअल कैलकुलेशन नहीं था, राइट. और करीबन 100 फैमिलीज के डेटा लिए मैंने, 15 स्टेट से, अलग अलग लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, अलग अलग सिटी, है ना, जिसमें मिक्स था कि फर्स्ट चाइल्ड मेल चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड फीमेल है, थर्ड चाइल्ड अगेन मेल है, तीनों लड़कियां हैं, चारों लड़के हैं, 2 लड़के हैं, एक लड़का एक लड़की, है ना, पहले लड़की जन्मी है फिर लड़का जन्मा है. तो ऐसे भी कॉम्बिनेशंस लिए. और ऐसा भी एक कॉम्बिनेशन लिया था मैंने दुबई से, जहाँ एक लड़का और एक लड़की जो ट्विंस है, जिसका कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं. तो उतनी गहराई तक हमें रिसर्च में जाना पड़ता है, फिर हमें एक अच्छा सा एक प्रिडिक्शन मिलता है. फिर मैनुअली मैंने देखा कि कुछ प्लैनेट्स, मेल और फीमेल प्लैनेट्स कहते हैं, लाइक एस्ट्रोलॉजिकल, इसमें अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो भी आपको एक आउटलाइन पे पता चलेगा, जिसके ऊपर मैंने काम किया. तो मुझे लाइक एक सक्सेस रेशियो मिला, जहां मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मुझे टेस्टिंग भी करना था. तो मेरे एक खास मित्र हैं, जो एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर है कोयम्बटूर में, आज भी है अभी भी है. तो उनसे मेरा संपर्क हुआ, मैंने उनको बताया कि ये डेटा है और मुझे ऐसा, मैंने नो लाइक मोर देन 50%, जो एक ग्रंथ 5,000 साल पहले लिखा है, उसका सक्सेस रेशियो आज मैं निकाल रहा हूँ, जो एक 50% से भी ऊपर मुझे मैनुअली दिखाता है, देन इट शुड बी टेस्टेड. क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का लॉ है कि आपको जनरल प्रिडिक्शन नहीं करना, राइट. अगर मुझे 50% से भी अगर ज्यादा सक्सेस रेशियो मिलता है, देन आई शुड गो फॉर टेस्टिंग साइंटिफिकली. तो उन्होंने मुझे बताया कि कोयम्बटूर में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, वहां जाके आप बात कीजिए. तो मैंने उधर जाके, प्रोफेसर डॉक्टर राजगोपाल है उस समय, यानी कि 2018 में, उस समय वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वहाँ पे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो कुंडली है ना, उसको मैथमेटिकल टर्म्स में बदलना है. कंप्यूटर को पता नहीं है सूर्य क्या है, राहु क्या है, चंद्र क्या है, इट नेवर अंडरस्टैंड्स, क्योंकि डेटा माइनिंग का सॉफ्टवेयर ऐसा है. तो हमें पूरा का पूरा जो कुंडली जो है, जन्म पत्रिका जो है, उसको हमें मैथमेटिकल टर्म्स में बदला. करीबन 300 कुंडलियां मैंने कन्वर्ट की थी मैथमेटिकल टर्म्स में, जिसकी वजह से आज एक मैं प्रोटोटाइप होल्डर भी हूँ वैदिक डेटा माइनिंग में. आज मैं एक प्रोटोटाइप होल्डर भी हूँ, यानी कि एक नया एक पैटर्न मैंने फाइंड आउट किया कि ऐसा भी हो सकता है करके. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि लाइक अमेजोन में अगर आप शर्ट या पैंट कुछ भी आप लाइक सेलेक्ट करते हैं ना, वैसे उस पद्धति के हिसाब से एक नया पैटर्न एक फाइंड आउट किया मैंने कि इसको भी, यानी कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर मैथमेटिक्स जो है उसको हम नंबर्स में भी कन्वर्ट करके फिर हम उसका टेस्टिंग भी कर सकते हैं. तो ये टेस्टिंग मैंने किया और मुझे बताया गया प्रोफेसर डॉक्टर राजगोपाल सर ने कि योर सक्सेस रेशियो इज 92% एंड फेलियर रेशियो इज 8%. यानी कि 100 फैमिलीज में मैंने दिया था डेटा टेस्टिंग के लिए. और डेटा टेस्टिंग की एक्यूरेसी जो उन्होंने बताई, वो खुद हैरान थे, मैं खुद हैरान हो गया. क्योंकि जहाँ 50+, है ना, मैनुअली जब मैंने किया तो मुझे एक अंदाजा आ गया था कि इसको टेस्टिंग करना जरूरी है. जब उन्होंने टेस्टिंग किया, विच इज द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, जब भारत सरकार ये कहती है कि आपका सक्सेस रेशियो जो है वो 92% है, जो डेटा आपने इसमें दिया है, जो जो कुंडली के हिसाब से आपने जो फॉर्मूला जो दिया है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो 92% है, विच इज द हाईएस्ट सक्सेस रेशियो. जो एक ग्रंथ 5,000 साल पुराना एक ग्रंथ जो है, अगर मैं आज की तारीख में अगर मैं कंपेयर करूं तो वो 92% ऑफ सक्सेस रेशियो दिखाता है. तो मैं कन्विंस हो गया कि इतने अच्छा सा रिजल्ट दे रहा है, सक्सेस रेशियो दे रहा है कि ये होने वाला ही है. यानी कि अगर मैं कुंडली देख के बताऊं कि जो बेबी अंदर जो है, गर्भ में जो है, वो लड़की है तो लड़की ही पैदा होगी, लड़का है तो लड़का ही पैदा होगा. तो ये रिसर्च हमने एक्चुअल में किया था बेस्ड ऑन दी वन चाइल्ड पॉलिसी.
चाइना के गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड पॉलिसी एक इशू किया था, जहां एक कपल जो है वो एक बच्चे को ही जन्म दे पाएंगे टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन, या तो फिर बैलेंस दी पॉपुलेशन, है ना। तो उस नजरिए से हमने ये प्रोजेक्ट किया कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये एक प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन अगर निकलता है तो क्या वो सोसाइटी के लिए सही है या गलत है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इधर हमने इम्प्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट हमने निकाला कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वन चाइल्ड पॉलिसी जो है उसको भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो मेरा जो रिसर्च का जो जर्नी जो है ऐसा रहा था कि अगर कोई भी टॉपिक लेते हैं या फिर कोई भी लाइक इंडिविजुअल रिसर्च के ऊपर अगर सोचते हैं, देन वी अप्लाई डिफरेंट नो लाइक एंगल्स, अलग अलग एंगल से हम देखते हैं एक प्रॉब्लम को, फिर उसका जो सोल्यूशन जो है वो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका क्या रेमेडी है, इसका क्या सोल्यूशन है, और इसका प्रॉब्लम कब आएगा, कैसे आएगा, सब। सो दिस इज हाउ आई कंप्लीटेड माय डॉक्टरेट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और श्री महर्षि कॉलेज ने मुझे अच्छा सा एक गाइडेंस भी दिया था कि ये गवर्नमेंट लॉ है, तो उस गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से मुझे लीगली जो रिसर्च करना था वो मैंने किया। एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट डॉक्टर प्रोफेसर राजगोपाल सर ने मुझे मना किया था कि आप ये प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, ये प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, और इसको सिर्फ एकेडमिक तौर के ऊपर हम एक्सेप्ट करते हैं, नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्योंकि जब भारत सरकार बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए तो हमें नहीं करना चाहिए, वो लाइक लॉ के खिलाफ हो जाए। राइट। कई लोगों ने मुझे कॉल भी किया था कि आप बता दीजिए, बट आई एम नो लाइक सॉरी टू दिस, क्योंकि जब भी लाइक भारत सरकार ये कहती है कि ये लॉ है और इसके आधार पर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो हमें वो मर्यादा बिल्कुल देनी चाहिए, राइट। है ना। और बात रही जब मैंने कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया था, even I was advised by the college and by the no, like Indian Statistical Institute कि आप कॉपीराइट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तो मुझे एडवाइस दिया गया था कि आप कॉपीराइट कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो एक सेंसिटिव टॉपिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आई एम नॉट अलाउड टू प्रिडिक्ट द जेंडर बेस्ड ऑन दी पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994। और अभी इस प्रोजेक्ट को लेके मैं अभी प्रिडिक्शन करता हूँ फॉर दी चाइल्ड बर्थ और मैरिज मैचिंग के ऊपर मुझे कॉल्स आते हैं। आई डू गिव द कंसल्टेशन ऑन दी लाइक मैरिज मैचिंग ऑल्सो एंड ऑल्सो ऑन दी चाइल्ड बर्थ। ऐसे ऐसे कई पेरेंट्स हैं शादी के बाद उनका बच्चा लाइक पैदा नहीं हो रहा है, गुड न्यूज आर नॉट येट कमिंग आफ्टर द मैरिज। तो क्या होता है ना कि दे गो फॉर द आईवीएफ ट्रीटमेंट्स, है ना, जहाँ भी वो लाइक आईवीएफ ट्रीटमेंट कराने के लिए लाइक डॉक्टर से लाइक जैसे टाइम और एडवाइस वगैरह सब लेते हैं, तो वैसे मेरे पास भी आते हैं एंड आई डू गिव दी लाइक ऑस्पिशियस टाइमिंग फॉर द कंसीविंग, है ना। क्योंकि देखिए, शादी के बाद बच्चा होना नहीं होना वो उनकी चॉइस है, कपल्स की चॉइस है, राइट। बट व्हेन इट लाइक काइंड ऑफ द प्रॉब्लम कि जहाँ बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा, कई बार ट्राई कर लिया, है ना, तो उस जगह मैं उनको लाइक एडवाइस देता हूँ थ्रू देयर हॉरोस्कोप्स। और खास करके जेंडर प्रिडिक्शन तो नहीं करता मैं, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वी शुड रिस्पेक्ट द लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बात रही जो कॉपीराइट की, जहाँ मैंने कॉपीराइट लाइक अप्लाई किया था 2018 में, डॉक्यूमेंटेशन के साथ मैंने पूरा उधर सबमिट किया था। मेरा एक्चुअल प्रोजेक्ट था कि एक अल्ट्रासाउंड स्कैन जो है उसके साथ कंपैरिजन करके देन वी कैन गो फॉर दी प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्टिव पैटर्न्स। लेकिन उसके लिए परमिशन नहीं मिला बेस्ड ऑन दी गवर्नमेंट लॉ ऑन दी प्रिडिक्टिव ऑन दी जेंडर बेसिस। तो मैंने थियोरेटिकली प्रोजेक्ट किया है और पूरा का पूरा जो थीसिस जो है वो मैंने कॉपीराइट करके रखा है, विच इज ऑल्सो पब्लिश्ड इन दी इंटरनेशनल जर्नल। तो जर्नल में जो हमने दिया हुआ है इन द प्रिडिक्टिव पैटर्न्स, जहाँ मेल बेबी फीमेल बेबी, इट इज जस्ट एन आउटलाइन जो आपको गूगल भी बता देगा, है ना। लेकिन जो पैटर्न हमने फाइंड आउट किया है थ्रू दी डेटा माइनिंग टेक्निक्स वो अभी तक रिवील नहीं हुआ एंड इट शुडंट बी रिवील्ड एज पर द गवर्नमेंट लॉ। जो पेपर जो पब्लिश हुआ है बाय द गॉड्स ग्रेस, कई लोगों के आशीर्वाद है, कई लोगों ने सपोर्ट किया है, मोर देन 75 कंट्रीज आई कैन से हैज बीन नो लाइक रेड। उसके ऊपर लाइक और भी रिसर्च हो रहे हैं एंड आई गेट कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो, जहाँ एक प्रिडिक्शन हम कर पाएंगे। क्योंकि
I do not have to like meet the pregnant woman or meet the like childless parents. आजकल की टेक्नोलॉजी क्या है कि सब ऑनलाइन में होता है. सो हाउ वी आर कनेक्टेड टुडे. तो ऐसे हम बातचीत करते हैं लाइक कपल्स के साथ कि हम उनको एडवाइस देते हैं. दे हैव देयर ओन क्वेश्चंस, है ना. तो मैं लाइक ऐसा देखता हूँ कि yes, the success ratio of Vedic astrology is 92% in my perspective. जहाँ मैंने डेटा कलेक्ट किया, जहाँ रिसर्च किया, तो अच्छा सा एक सक्सेस रेशियो मिल रहा है जो एक ग्रंथ से निकाला गया है. और इसमें मैंने दो बुक्स यूज की है. एक बुक तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र और दूसरी बुक है कृष्णमूर्ति पद्धति की फोर्थ रीडर, मैरिज मैचिंग एंड चिल्ड्रंस लाइफ करके केपी की एक बुक है कृष्णमूर्ति पद्धति की. तो वो मैंने यूज की है. उसमें भी प्रोफेसर कृष्णमूर्ति पद्धति ने उधर साफ साफ लिखा हुआ है कि जेंडर प्रिडिक्शन करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए और बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चाहिए, जहां आपको एक जेंडर प्रिडिक्ट करने के लिए एक पैटर्न भी मिल सकता है. उन्होंने कहा कि इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द जेंडर ऑफ बेबी. तो उसके कारण मुझे आज एक प्रोटोटाइप होल्डर का एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है मेरे कॉलेज से. टचवुड, जब मेरा कॉपीराइट मेरे पास आया था वो मेरा जन्मदिन ही था. उसी दिन कॉपीराइट साइन होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया था विद द सर्टिफिकेशन. एंड इट इज द वन मोर ब्लेसिंग व्हिच आई गॉट from the higher authorities. Moving to the next topic about medical astrology. So what exactly a medical astrology and how does it operate within your research framework? सर इसके बारे में से बताएं. बिल्कुल सर. देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज कनेक्टेड ओनली विद द मेडिकल टर्म्स. यानी कि मेडिकल इश्यूज जो हो रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज जो हो रहे हैं, हेल्थ के ऊपर अगर हमें देखना है तो उधर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत ही काम आता है. हमारी बॉडी जो है उसको हम अलग अलग भावों से डिवाइड करते हैं. यानी कि प्रथम भाव क्या दर्शाता है, द्वितीय भाव क्या दर्शाता है, तृतीय भाव क्या दर्शाता है. तो 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं, है ना. तो इसके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि आपके शरीर में कौन से अंग में प्रॉब्लम हो सकता है. अगर मान लीजिए कि प्रथम भाव में अगर कोई भी ग्रह अगर नीच राशि का आ गया, है ना, तो आपके सिर दर्द में हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है, राइट, साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है. अगर आपके द्वितीय या फिर 12वें भाव में अगर कोई ग्रह यानी कि शत्रु राशि में अगर बैठ गया या फिर शत्रु के साथ अगर बैठ गया तो आइस में प्रॉब्लम हो सकते हैं, है ना. अगर फोर्थ हाउस के ऊपर अगर देखें तो हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट. सो दीज आर दी हाउसेस, है ना. अगर फिफ्थ हाउस में अगर कोई भी लाइक ग्रह अगर नेगेटिवली प्लेस्ड हो गया देन इट गिव्स द इश्यूज रिलेटेड टू द चाइल्ड बर्थ. सेवंथ हाउस के साथ अगर बैठ गया देन इट गिव्स इश्यूज टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना. तो हमने इसमें भी रिसर्च किया बेस्ड ऑन द कैंसर. कैंसर के ऊपर भी हमने रिसर्च किया है कि कैंसर का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है और उसका पेपर पब्लिकेशन भी किया विच इज काइंड ऑफ सॉल्यूशन टू द जनरल सोसाइटी. और बात रही ऑन द डायबिटिक के ऊपर भी हमने रिसर्च किया हुआ है और हार्ट अटैक के ऊपर भी किया हुआ है, प्रोजेनी के ऊपर भी किया हुआ है, चाइल्ड बर्थ के ऊपर बहुत ही लाइक कई सारे सवाल आते हैं हमारे पास, तो उसके ऊपर भी हमने रिसर्च किया हुआ है. और मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बराबर नहीं है तब चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाएगा. दिस द मेडिकल डॉक्टर्स आल्सो यूज्ड टू से, है ना. तो उसके ऊपर भी हमने रिसर्च किया हुआ है. एंड दिस लाइक काइंड ऑफ रिसर्च आर सेंसिटिव हेल्थ के ऊपर जहां हम पेपर पब्लिश करते हैं. अब जरा सोचिए, एक नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं कुछ अगर मेडिकल टर्म के ऊपर बताऊं, बीइंग अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट एंड बीइंग अ नॉन मेडिकल नो लाइक जो दी फैमिली बैकग्राउंड व्हाट एवर इट मे बी. मेरा तो नॉन मेडिकल है ना. आई एम टोटली बेसिकली आई एम फ्रॉम दी नो लाइक एस्ट्रोलॉजिकल नो लाइक काइंड ऑफ द बैकग्राउंड, राइट, विद ऑल द नो लाइक अदर एजुकेशन सपोर्ट. तो जब भी हम लाइक मेडिकल के ऊपर जब भी हम बात करते हैं ना, तब एक प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट के बिना उसके कंपैरिजन के बिना हम नहीं कर सकते. मान लीजिए कि अगर हार्ट अटैक के ऊपर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं देन आई शुड नो फ्रॉम द रेस्पोंडेंट कि आपका फर्स्ट अटैक कब आया था. वो तारीख लेते हैं, वो टाइम भी लेते हैं और उसके गोचर की कुंडली भी बनती है. तो सिर्फ जन्म पत्रिका के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, उसके अलावा और भी है. तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी itself is one of the like biggest boon I can say, जहाँ like मेडिकल like issues या तो फिर हेल्थ इश्यूज के ऊपर हम अच्छा सा प्रिडिक्शन कर पाएंगे. सो देयर आर मेनी रिसर्च इन पाइपलाइन जहाँ लाइक हेल्थ इश्यूज को हम बहुत ही पहले जानकर फिर उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं थ्रू द वैदिक एंड द like ट्रेडिशनल मेथड्स एंड ऑल्सो विद द like medical like doctors, the general society can take the precautions. Sir, moving to the next question, what zodiac sign should take special health precaution
अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज। सर इसके बारे में बताइए। और बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि ग्रह दोष से किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पे प्रभाव डालता है या और भी चीजें होती हैं। सो व्हाट आर क्विक रेमेडीज फॉर दैट? जो दोष के बारे में आप बताते हैं ना, तो देखिए, अगर कुंडली में अगर हम देखें तो वी आर बॉर्न विथ द प्लस एंड माइनस। सब लोग जो हैं वो अच्छे और बुरे कॉम्बिनेशंस के साथ हम पैदा होते हैं, राइट। और पिछले जन्म के कर्म भी हैं उसमें जुड़े हुए हैं, इस जन्म के कर्म भी जुड़े हुए हैं, राइट। तो जो दोष जो है कुंडली में, मान लीजिए कि मंगल दोष है, शनि दोष है, कालसर्प दोष है, तो ऐसे दोष जो है वो यस डेफिनेटली इट इज हैविंग द इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी। तो ऐसा कोई राशि नहीं है, ऐसा कोई नक्षत्र नहीं है, वो एक पर्टिकुलर उस इंसान की जन्म पत्रिका है जो हमें बताती है कि ये इंसान को, यानी कि इस जन्म पत्री वाले को हमें लाइक ऐसा प्रिडिक्ट है कि कौन सा हेल्थ इशू होने वाला है, राइट। जहाँ अगर देखा जाए तो ये सब जो जो दोष वगैरह जो कहते हैं, दैट इज वन ऑफ द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग। जहाँ आप कालसर्प योग है या फिर लाइक मंगल दोष है ना। तो मंगल दोष के ऊपर अभी हाल में एक रिसर्च हुआ था कि जिन जिन का मंगल दोष है उनका एक बेस्ट रेमेडी है, ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। तो ये पहले के जमाने में नहीं था, यानी कि 20 साल पहले अगर आप देखेंगे तो उनका रेमेडी कुछ अलग था। तो आजकल के इसमें लाइक जनरेशन में रेमेडी जो है वो थोड़ा बदल चुका है, जो हमारे शरीर में जो है ना। तो उसी से हम लाइक रेमेडी करते हैं, राइट। जैसे कि अगर लाइक कोई ऐसी रेमेडी दे दी कि कालसर्प योग है तो आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए हर सोमवार, तो दिस इज वन ऑफ द सिंपल रेमेडी, राइट। और अगर मंगल दोष है कुंडली में, मैरिज मैचिंग के ऊपर खास देखते हैं, मंगल दोष और शनि दोष वगैरह सब देखते हैं, है ना। तो एक सर्टेन टाइम के ऊपर, यानी कि 27-28 साल के बाद वो शादी कर सकते हैं, राइट। देर आर नो लाइक एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस इसके पीछे, कि जब भी शनि जो है वो मंगल के ऊपर, यानी कि एक इंसान की कुंडली के मंगल के ऊपर अगर प्रसार होकर निकलते हैं शनि भगवान ट्रांसिस्ट में, तो वो नेगेटिव जो है वो टल जाता है। तो आजकल के जनरेशन में अगर आप देखेंगे ना, तो शादियां ही लेट कर रहे हैं, क्योंकि 24 साल तक तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, 23-24 साल तक तो पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद करियर बनाने में उनको 3 से 4 साल लग जाता है। तो नेचुरली जो मंगल दोष जो है वो शनि दोष जो है वो नेचुरली आफ्टर 27-28 वो टल जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल नो लाइक रेमेडी जहाँ ये दोष के ऊपर है। ये बात हुई नेगेटिव साइड ऑफ दी नो लाइक प्लानिटरी पोजीशंस। अभी उसमें भी पॉजिटिव है कि योग बन गए। योग जो है वो आपके जिंदगी को पूरा का पूरा बदल देगी। जैसे कि लक्ष्मी योग है ना, गजकेसरी योग है, राज योग है। तो ये सारे योग जो है, वैसे 500 योग हैं आज की तारीख में जो पब्लिश्ड है इन दी प्रिंटेड फॉर्मेट। 500 प्रकार के योग है ना। तो जितना आप कुंडली को आप पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ प्लस एंड माइनस, तो उधर आपको दिखाई देगा कि कोई एक नक्षत्र ऐसा नहीं है, कोई एक राशि ऐसी नहीं है जहां सिर्फ वो नेगेटिव या सिर्फ वो पॉजिटिव देगी। इट इज अबाउट द इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि आप या फिर मैं खुद, है ना, एक मेडिकल डॉक्टर के पास गया, उधर जाके ऐसे ही खड़ा हो गया मैं कि डॉक्टर बताइए मुझे कौन सी दवाई देनी है। तो डॉक्टर क्या पूछेंगे? सिम्टम्स। कि भैया आपकी प्रॉब्लम तो बताइए, आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम, सिम्टम्स क्या है। डॉक्टर को ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा कि एक पेशेंट को देख के ऐसे ही मेडिसिन दे दी, ऐसे तो नहीं होता। उनका टेस्टिंग होता है, ब्लड टेस्ट कराते हैं अगर कुछ कुछ केसेस में, है ना। तो ऐसा होता है कि अलग अलग कुंडली अलग अलग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। ऐसा कोई एक जोडियाक साइन या फिर कोई राशि, ऐसा कोई नक्षत्र या फिर कंस्टलेशन ऐसा नहीं है जो नेगेटिव रिजल्ट देगी। हाँ, शास्त्र में लिखा हुआ है कि आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूढ़ नक्षत्र अगर इनमें जन्मे हुए हैं तो फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम हो सकता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इश्यूज, राइट। तो उसका पूजा विधि जो है वो कर्मकांड शास्त्र में लिखा हुआ है। और ज्योतिष शास्त्र और कर्मकांड शास्त्र सदियों से एक गाड़ी के दो पहिए हैं, यानी कि दोनों साथ में चलते हैं। जो रेमेडी जो है वो आपको कर्मकांड शास्त्र से मिलेगी, तो रेमेडी क्या करना है वो आपको ज्योतिष शास्त्र से मिलेगी। और एक और बात इंटरेस्टिंग, बहुत लाइक इंटरेस्टिंग है, सब लोगों को ये सुन के एक बार लाइक अपने खुद की शादी के बारे में भी सोचेंगे, दूसरों की शादी के बारे में भी सोचेंगे। जहाँ ये नक्षत्र शांति वगैरह किया जाता है शादी के टाइम पे, तो सबका जो क्रम जो है वो अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। यानी कि उस दिन जब शांति ग्रह की पूजा की जाती है, नवग्रह की शांति की पूजा की जाती है, उस दिन कौन सा ग्रह उच्च का है कौन सा ग्रह नीच का है वो
कर्मकांडी ब्राह्मण जानते हैं, ज्योतिषी जानते हैं, उसके हिसाब से मुहूर्त वगैरह फिक्स किया जाता है, उसके हिसाब से पूजा पाठ क्रिया सब होता है। कई शादियों में आपने ये भी सुना होगा कि उधर तो अलग था, इधर अलग है। तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन द एस्ट्रोलॉजिकल लाइक रूल्स रेगुलेशंस, यानी कि जो जो ग्रह मित्र के साथ बैठे हैं, जो ग्रह शत्रु के साथ बैठे हैं, तो उसके हिसाब से ये शांति क्रिया सब किया जाता है, विच इज वन ऑफ दी लाइक इंटरेस्टिंग थिंग ऑल्सो। क्योंकि कभी कभी ना शादी में लाइक ऐसा भी होता है कि कंपैरिजन करते हैं कि पिछली शादी में, यानी कि दूसरी शादी में तो नहीं था क्रम, लेकिन इस शादी में ये क्रम है, तो बड़ों से पूछना चाहिए, है ना, जो जानकार है उनको पूछना चाहिए। आप पंडित से ही पूछ लीजिए, आचार्य से पूछिए, वो बताएंगे आपको ये नवग्रह की शांति जो है वो किस कारण की जाती है, मुहूर्त कैसे दिया जाता है, उसके हिसाब से। और आजकल का जनरेशन जो है, इट इज नो डाउट एजुकेटेड, है ना, एजुकेटेड है, तो पंचांग में जो दिए गए हैं ना मुहूर्त वगैरह, तो वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। प्लीज डू नॉट फॉलो दी मुहूर्ता विच इज गिवन इन दी पंचांगा ब्लाइंडली, क्योंकि हमारे देश में करीबन 250 पंचांग है। कौन कौन से स्टेट के लिए, है ना, कौन से लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के लिए आप कौन सा पंचांग आप फॉलो करेंगे। अभी मैं उदयपुर राजस्थान में हूँ, है ना, अगर मैंने तमिलनाडु का पंचांग अगर यूज किया तो वो मेरे लिए इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। वहां का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड अलग है, यहाँ का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड अलग है, तो जिस स्थान पे मैं हूँ ना, उस स्थान का पंचांग मुझे यूज करना चाहिए, बिकॉज द सनराइज इज डिफरेंट फॉर एवरी सिटी, एवरी स्टेट। अगर आप क्रॉस कंपेयर करेंगे ना कि कलकत्ता का सनराइज जो है वो सुबह 5:30 बजे हो रहा है, दिस इज द एवरेज टाइम विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, ये हमारा टाइम जोन है सुबह 5:30 का, है ना। तो हो सकता है उधर सुबह 5:30 बजे कलकत्ता में सूर्योदय हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बम्बे में भी सेम टाइम पे सूर्योदय हो जाए। ऑफ कोर्स यू विल हैव द डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स ऑन एन एवरेज, है ना, 20 से 25 मिनट का आपको डिफरेंस मिलेगा। तो उसके हिसाब से पंचांग जो है उसको भी प्रॉपरली फॉलो करना जरूरी है। और आजकल लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वी आर नो लाइक गिफ्टेड विथ नो लाइक फ्री सॉफ्टवेयर इन दी एप्पल प्ले स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर। आपको आपके जीपीएस लोकेशन के हिसाब से आपको वो रीडिंग देता है। वी आर नो लाइक ब्लेस्ड बाई दी नो लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज, जो लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये जो जो कैलकुलेशंस जो है और इसका प्लानिटरी पोजीशन जो है वो सब बताते हैं। Sir, moving to the next question and a big one. Do you see astrology as a viable career choice for the young generation? और सर उनको आप क्या क्या पॉइंटर्स देना चाहेंगे who are willing to get into this particular field, इस विद्या को सीखना चाह रहे हैं जो लोग, और उनको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? गुड क्वेश्चन सर, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। और मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि आप इस फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरे लाइक एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ कि अगर आपको ज्योतिष शास्त्र सीखना है और अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो डेफिनेटली आई आई हैव नो लाइक वार्म वेलकम टू यू ऑल, क्योंकि ये मैथमेटिकल बेस है जहाँ कोई भी कास्ट और रिलीजन के ऊपर नहीं है, पॉइंट नंबर 1। और बात रही ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान की, इट इज टोटली ऑन दी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट्स। ऐसा नहीं है कि लाइक अगर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है तो इसमें नहीं आ सकती, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आज सॉफ्टवेयर्स हैं जो कैलकुलेशंस करके हमें देते हैं, हमें इंटरप्रिटेशन करना है। सॉफ्टवेयर ये नहीं बताएगा कि आपके इस दशा में आपको ये लाइक प्लस या फिर माइनस आपको आ सकता है ना। जो ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 1, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। यू कैन डेफिनेटली सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स, पॉइंट नंबर 1। और श्री महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी उदयपुर में कई सारे कोर्सेज हैं, नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी। हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी से उन्होंने शुरुआत की थी, आज करीबन 25 साल हो गए हैं उनको। एंड टचवुड आई एम वर्किंग विद देम और प्रिंसिपल हूँ कॉलेज का। तो मैं यहाँ पे लाइक एडवाइस देना चाहूंगा सब दर्शकों को कि ज्योतिष शास्त्र आप पढ़िए डिप्लोमा लेवल से, जहाँ बेसिकली हम सिखाते हैं फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, नो इश्यूज इन दैट। एलिजिबिलिटी इज 20+ ईयर्स, क्योंकि आपको अच्छा और बुरा में आपको एक अंतर होना चाहिए, जहाँ ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और डिप्लोमा से आप पढ़ सकते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, फिर मास्टर्स है, फिर उसके बाद पीएचडी लेवल है। जो मैंने ये सारे कोर्सेज मैंने श्री महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से किया हुआ। आप भी पढ़ सकते हैं और आप भी लाइक रिसर्च कर सकते हैं। कोई भी सोसाइटी का प्रॉब्लम अगर लेके आप पढ़ते हैं ना तो बहुत ही मजा आएगा। आई मीन आपको
इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा, आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ेगा कि इसका सोल्यूशन निकालना ही है। सोल्यूशन है, ग्रंथों में लिखा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए सब। और बात रही करियर के ऊपर, बिल्कुल आप कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई करके सोल्यूशन निकाल के सोसाइटी को देना ही एक काम नहीं है इसमें। आप पूरी सोसाइटी को आप गाइडेंस दे सकते हैं, और इसमें आप स्पेशलाइजेशन पा सकते हैं, जैसे कि करियर गाइडेंस, फिनेंशियल गाइडेंस, है ना, मैरिज मैचिंग के ऊपर, है ना। हमारे पास तो वास्तु का कोर्स भी है, न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, राइट, और टैरो रीडिंग का भी कोर्स है। सो देर आर नो लाइक फैकल्टीज हु आर टीचिंग, और सबके सब डॉक्टरेट्स हैं। ऑल आर फैकल्टीज आर डॉक्टरेट होल्डर्स। तो जब भी एक डॉक्टरेट होल्डर से आप पढ़ेंगे ना, जो यू विल लर्न दी नो लाइक पर्टिकुलर ऑकल फील्ड राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टिल दी रिसर्च लेवल। और हमारे यहाँ पे कई फॉरेन स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, और कई लोगों ने सीख भी लिया है। और कॉलेज ने एक ऐसा लाइक अपॉर्चुनिटी रखा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पीएचडी, डॉक्टरेट के बाद प्लेसमेंट ड्राइव भी हम देते हैं, जहां एस्ट्रो योगी, एस्ट्रोटॉक, बोधि टेक्नोलॉजीज, हितम एस्ट्रो, गणेशा स्पीक, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जहां अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं हमारे खुद के स्टूडेंट्स। प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, जहां आप अपने घर पे बैठ के भी आप काम कर सकते हैं। और हमारा कॉलेज तो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है ना। तो घर बैठ के आप पढ़ाई भी कर सकते हैं विद द स्टडी मटेरियल्स, विद द लाइव क्लासेस, विद रिकॉर्डिंग्स और असाइनमेंट्स। आपको प्रैक्टिस भी किया जाता है, बिकॉज अनलेस अ मैन प्रैक्टिस the person never becomes perfect. Practice makes a man perfect. तो हम प्रैक्टिस भी कराते हैं, और डेफिनेटली आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, करियर लाइक आप इसमें बना सकते हैं। कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी इसके पीछे काम कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर जो है उसको और एक्यूरेट कैसे बनाया जाए। वेरी गुड। वास्तुशास्त्र के जो लाइक इंटीरियर डिजाइनर्स है, लाइक आर्किटेक्ट हैं, वो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं, जहाँ वास्तुशास्त्र के हिसाब से और लाइक रेमेडीज भी देते हैं वो, है ना। और कई सारे एडवोकेट्स जो फैमिली मैटर्स के इश्यूज वगैरह वो हैंडल करते हैं, है ना, कोर्ट केसेस जो हैंडल करते हैं, खास करके मैरिज के प्रॉब्लम्स के ऊपर, वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं और मैरिज मैचिंग वो करते हैं फॉर द काउंसलिंग पर्पस। ऐसे ही डाइवोर्स नहीं दिया जाता कोर्ट में, तो काउंसलिंग भी किया जाता है वो फॉर लाइक मिनिमम सेशंस उनको, लाइक एज पर द केस, तो उधर काउंसलिंग भी करते हैं, है ना। तो इवन द एडवोकेट्स दे हैव टेकन द एस्ट्रोलॉजी एज अ सपोर्टिव टूल टू एडवाइस। वो साइकोलॉजी भी करते हैं और एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, यानी कि साइकोलॉजी का जो एक्सरसाइज जो है, साइकोलॉजी में भी एक्सरसाइज आते हैं बेसिकली फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड ऑल्सो। तो साइकोलॉजिकली एक इंसान को एक प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकाला जा सकता है, वो भी एक सपोर्टिव टूल है। वैसे ज्योतिष शास्त्र भी एक सपोर्टिव टूल है, और इंक्लूडिंग द फिनेंस, जहां आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुंबई से हैं, है ना, महाराष्ट्र से, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ के फिर शेयर मार्केट में उनका लाइक R&D उनके हिसाब से मैनुअली करके वो फिर फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा समय अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कौन सा समय अच्छा रहेगा विड्रॉ करने के लिए, शेयर्स को लाइक सेल करने के लिए। सो दीज आर ऑल द अपॉर्चुनिटीज जहां आप अपने खुद के प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे और उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। दिस इज बेसिकली to understand the problems and to sort out the problems through occult science. So I welcome the youngsters and this particular podcast viewers that you can very well learn the occult science courses and find the solutions for yourself. Personal life problems can also be solved, and you can also solve the problems of the society which is existing in today's generation and in upcoming generation also. क्योंकि शास्त्र में जो लिखा गया है वो इतना accuracy दे रहा है, then yes, you can but not like step in and you can definitely make a career in this. और बात रही, अगर आप बड़े बड़े लाइक प्लेटफॉर्म में या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं, दीज आर स्किल बेस्ड कोर्सेस एक्चुअली। 64 कलाओं में ज्योतिष शास्त्र एक कला है, वास्तु शास्त्र दूसरी कला है ना। 64 कलाओं में से एक कलाएं हैं, जैसे कि सिंगिंग हो गया, डांस हो गया, पेंटिंग हो गया। सो दीज आर ऑल स्किल बेस्ड कोर्सेस। तो आपका स्किल और भी अच्छा बढ़ेगा और भी अच्छा रहेगा। एंड अगर आप कंसल्टिंग करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी, है ना। मैं टीचिंग भी करता हूँ, रिसर्च भी करता हूँ और साथ साथ में कंसल्टिंग भी कर रहा हूँ। सो दीज आर पॉसिबल थिंग्स, है ना। और आज काफी सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं, वेब डेवलपमेंट कंपनीज जो है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनीज जो है, वो एडवर्टाइज करते हैं कि आप अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर आप कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर ओन कंसल्टिंग बिजनेस। तो
तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. टुडे इज द अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज आर इंक्रीजिंग एंड इन नियर फ्यूचर इट विल इंक्रीज डेफिनेटली. अगर आप बड़े बड़ी कंपनीज जो हैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट जस्ट फाइंड आउट थ्रू गूगल कि हाउ मेनी एस्ट्रोलॉजर्स आर वर्किंग इन टॉप नॉच कंपनीज. उसमें हमारे स्टूडेंट्स भी हैं. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कंसल्टिंग दे रहे हैं अपने खुद के लाइक फर्म से, और जो कंपनी के थ्रू जो कंसल्टिंग दे रहे हैं वो हमारे कॉलेज में आके लाइक पढ़ाई भी करते हैं. डिस्टेंस एजुकेशन है हमारा. सो लाइव सेशंस को अटेंड करते हैं, एग्जामिनेशन लिखते हैं, एंड दी सर्टिफिकेट्स आर ग्लोबली वैलिड. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दी कंसल्टिंग इज आल्सो पॉसिबल फ्रॉम योर एंड. आपका खुद का एक कंपनी भी आप कर सकते हैं, कंसल्टिंग कंपनी, कंसल्टिंग सर्विसेज भी आप कर सकते हैं. सो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज. ग्रेट 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 सर. मूविंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, एक अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर आपसे. इन योर व्यू, इज एस्ट्रोलॉजी मोर ऑफ ए डिसिप्लिन और ए साइंस, एंड क्यों? सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए. एंड सर, जैसे आपने जर्नी आपकी शेयर करी, सर व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट आपका क्या रहा, और आगे आप क्या करने वाले हैं सर, इसके बारे में प्लीज सर थोड़ा सा बताइए. A great question on discipline and science, right? One of the great question. तो वैदिक लिटरेचर में जो लिखा है 16 संस्कारों के ऊपर, वो मेरे रिसर्च के थ्रू मैं सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि दिस इज ट्रू कि ज्योतिष शास्त्र हमें गाइडेंस देता है थ्रू बर्थ चार्ट, जहाँ टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट हो या ना हो, या कुंडली भी ना हो, ज्योतिष शास्त्र में सवालों का जवाब दिया जाता है ना. अगर कुंडली है तो डेफिनेटली अच्छा सा डिफरेंस हमें पता चलता है कि प्लस एंड माइनस क्या है ना. और अगर कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली का एक मेथड है, मेथोडोलॉजी है, जहां हम ये जान पाएंगे कि व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर कोई पूछ रहे हैं कि अगर मुझे इंटरव्यू देना है तो ये सही टाइम है, अच्छा टाइम है, ऑस्पिशियस टाइम है या नहीं, तो उसके हिसाब से मैं कंपनी में बात करूं और अच्छे टाइम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूं. तो इधर विदाउट कुंडली आपको एस्ट्रोलॉजर आपको बता देंगे कि ये सही टाइम है या नहीं. दैट इज पॉसिबल. होरारी एस्ट्रोलॉजी है जो कृष्णमूर्ति पद्धति का एक पार्ट है, होरारी एस्ट्रोलॉजी. और इंक्लूडिंग द पर्सन हु लर्न्स द वैदिक लिटरेचर विल गेट अ डिसिप्लिन. महाभारत है, रामायण है, 18 पुराण है और 4 वेद है, जिसमें यजुर्वेद जो है वो आज के तारीख में हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके भी 2 पक्ष है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष. ठीक है. ये ज्योतिष शास्त्र में ये लाइक 2 पक्ष की मान्यता भी है कि कौन से पक्ष में शादी करनी चाहिए, कौन से पक्ष में नहीं करनी चाहिए. अच्छे कार्य जो है वो शुक्ल पक्ष में मैक्सिमम होते हैं, कृष्ण पक्ष में नहीं करते हैं. ठीक. तो इधर आपका डिसिप्लिन बनता जा रहा है कि कौन से समय पे कौन सा कार्य करना चाहिए. तो ये 16 संस्कार राइट फ्रॉम दी प्रेगनेंसी टू दी डेथ, हर एक मोड पे, हर एक कदम पे मैं तो ये कहूंगा कि हमारा डिसिप्लिन जो है वो बढ़ता जाएगा जितना आप वैदिक लिटरेचर का अभ्यास करेंगे, जितना आप वैदिक लिटरेचर लर्न करेंगे. ग्रेट ग्रेट. ये कई घरों में आज भी भागवत गीता के श्लोक जो हैं उसको रीड करते हैं, उसको समझते हैं, जिंदगी में उतारते हैं. सो देयर आर मेनी और नॉट लाइक इम्पोर्टेंट और नॉट लाइक की पॉइंट्स जहाँ थ्रू ज्योतिष शास्त्र आप अच्छा सा एक जीवन जी पाएंगे. ये डिसिप्लिन लाता है बेसिकली राइट फ्रॉम दी चाइल्डहुड. और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि हर एक इंसान इस धरती पे जब जन्म लेते हैं ना, तो अच्छे और बुरे यानी कि गुड लक एंड दी बैड लक, राइट, उसके साथ ही जन्म लेते हैं. अच्छे योग और बुरे योग के साथ ही जन्म लेते हैं. तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं. कई बार आपने ये भी सुना होगा कि बच्चा पैदा हो गया और डाइवोर्स ले लिया. सो द पर्सन हु हैज बोर्न इन दैट पर्टिकुलर फैमिली, वेदर मेल बेबी और फीमेल बेबी, डजंट नो लाइक मेक अ डिफरेंस टू द एस्ट्रोलॉजर. उनके लिए तो कुंडली है ना. मैं भी ऐसे ही देखता हूँ कि स्त्री है या पुरुष है, हम कुंडली देखते हैं, मैथमेटिक्स हम देखते हैं कि गणित क्या कहता है, तो उसके हिसाब से हम उनको राय देते हैं, एडवाइस देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो बेसिकली डिसिप्लिन आता है फर्स्ट. तो जैसे ही आप डिसिप्लिन के साथ जैसे आप जिएंगे ना, तो नो डाउट यू विल एंड अप विद द अबंडेंस ऑफ पावर, है ना. इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट. हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट. बट योर कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. ये जनरली सबने सुना हो, राइट. फिजिक्स के लॉ क्या कहते हैं? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. आज जो आपने किया है उसका वापस आपको मिलने का ही है. सो इवन द ट्रांसिट ऑफ सैटर्न, साढ़े सती का जो इतना लाइक ध्यान दे रहे हैं
ज्योतिष शास्त्र के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि शनि ऐसा प्लेनेट है जो आपकी परीक्षा लेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी भी देंगे और आपको चैलेंज भी देंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए, अगर आपने बुरे कर्म किए, तो उसके हिसाब से आपको फल मिलने वाला ही है। सो डिसिप्लिन कम्स फर्स्ट इफ यू लर्न द वैदिक लिटरेचर, और धीरे धीरे ही यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज अनटोल्ड साइंस। जहां एक जन्म पत्रिका से, मैरिज मैचिंग से आप ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा पैदा होने वाला जो है वो स्त्री है या पुरुष है, जो एक मेडिकल साइंस को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखकर उसके ऊपर जो रिसर्च किया है हमने, तो दिस इज एन अनटोल्ड साइंस। आई कैन से एस्ट्रोलॉजी इज एन अनटोल्ड साइंस। हाँ, रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि पहले का जीवन बहुत ही अलग था, आज का जीवन बहुत ही अलग है, राइट? तो डिसिप्लिन कम्स फर्स्ट एंड देन इट लीड्स अस टू द साइंस थ्रू द वैदिक लिटरेचर, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सर आपने बताया, व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट? तो मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट जो है इज येट टू कम। आई एम डूइंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर द सोसाइटीज पर्पस, जहाँ सोसाइटी को एक अच्छा सा सोल्यूशन मिले। हमने एक रिसर्च किया बेस्ड ऑन दी मैरिज मैचिंग पर्सपेक्टिव, जहाँ हेल्दी बेबी होना जरूरी है। हम अभी हेल्दी बेबी के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं कि बेबी का और मदर का और फादर का सबका हेल्थ अच्छा रहे। हेल्थ इज वेल्थ, है ना? तो हेल्थ अच्छा रहे, तो उसके ऊपर हमने एक रिसर्च किया बेस्ड ऑन दी HIV एड्स, कि अगर एड्स को अगर पहचानना है थ्रू एस्ट्रोलॉजी तो क्या वो पॉसिबिलिटी है? अगर पॉसिबिलिटी है तो उसके ऊपर हमने रिसर्च किया। करीबन 49 कंट्रीज में हमने डेटा कलेक्शन किया। बैंगलोर में एक फाउंडेशन है, आशा किराना फाउंडेशन, जहां से हमें सपोर्ट मिला था। उनकी रिसर्च की कमिटी जो है, उन्होंने भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन पढ़े और करीबन 5,000 हॉरोस्कोप्स हमने कलेक्ट किए। उनमें से 979 हॉरोस्कोप्स जो है उसके ऊपर हमने डेटा एनालिसिस किया, और हमें ये पता चला कि एड्स कब हो सकता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन है। तो मैरिज के ऊपर दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आजकल की पीढ़ी जो है उसको ध्यान देना चाहिए। और हेल्दी बेबी के पर्सपेक्टिव, हेल्दी रिलेशंस के पर्सपेक्टिव के नजरिए से अगर हम देखें तो ज्योतिष शास्त्र में HIV का एक एनालिसिस हमने किया, और पेपर भी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ। और अगर मैं आपको सक्सेस रेशियो बताऊं, यू विल बी शॉक्ड कि how is it possible? The success ratio of finding HIV through astrology using data mining techniques is 99.23%। तो मैरिज मैचिंग में ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं आजकल, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर शादी हुई है, बच्चा अगर पैदा नहीं करना है, तो वो कपल की चॉइस है, मेल या फीमेल की चॉइस है, ब्राइड या ग्रूम की चॉइस है ना, पति पत्नी की चॉइस है। लेकिन अगर बच्चा पैदा करना है, देन दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जहां हम फोकस करते हैं कि हेल्दी बेबी होना जरूरी है। तो अगर HIV है, किसी एक को भी HIV है, तो बेबी को भी HIV होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट जो हमने किया हुआ है, जिसका पेपर पब्लिकेशन विद कॉपीराइट्स, ये सब श्री महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अवेलेबल है, एंड विद द सपोर्ट ऑफ द कॉलेज अथॉरिटीज, जहाँ कमिटी मेंबर्स ने और आशा किराना फाउंडेशन के कमिटी मेंबर्स ने अप्रूव किया हुआ है, और भारत सरकार ने भी इसके ऊपर कॉपीराइट दिया हुआ है। एंड वी आर कनेक्टेड विद फ्यू सॉफ्टवेयर कंपनीज, जहां HIV एड्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द मैरिज मैचिंग पर्सपेक्टिव। कितने गुण है सर हमारे मैरिज मैचिंग में, क्या आप जानते हैं? सर 36 गुण होते हैं। 36 गुण है। 36 से आगे क्यों नहीं बढ़े सर? हम 36 से आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक कदम तो रख चुके हैं, खास करके HIV के ऊपर। सो दिस इज वन ऑफ द अचीवमेंट आई फील दैट आई हैव डन टिल डेट। आगे भी बहुत रिसर्च करना है, आगे भी कई सारे टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करना है, जहां हम सोसाइटी को और एक परिवार को, एक समाज को, पूरे देश को, है ना, कई देशों को एक अच्छा सा एक गाइडेंस दे पाए कि ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है। सर, मूविंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, एक लास्ट सवाल मैं लेना चाहूंगा। प्लीज, जो भी योगी राम के दर्शक हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सर उनके लिए एक लास्ट मैसेज विथ एस्ट्रोलॉजी, विथ योर रिसर्च वर्क एंड विथ योर वास्ट एक्सपीरियंस। सो आई थैंक ऑल दी viewers of the Yogi Ram YouTube channel to spend your time on this particular topic called the Vedic astrology and the blend of today's technology, जहां हम ये जान पा रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी है, जहां गणित का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है, जहां कुंडली वगैरह हम
कैलकुलेट करके फिर उसका फल कथन करते हैं, फिर उसकी रेमेडीज देते हैं, है ना, परिहार करते हैं। और आज की टेक्नोलॉजी जो है उसको भी यूज करना जरूरी है। जैसे कि आज हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, उसमें आप ये देख पा रहे हैं कि कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन किसके ऊपर विश्वास करें, कौन सा प्रिडिक्शन सही होगा, कौन से सॉफ्टवेयर हम परचेज करें, है ना। तो ये सब जो जो लाइक रिसोर्सेस जो हमारे पास है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, उसको भी हम लर्न करते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर को भी लाइक अच्छे से हम लर्न करते हैं, फिर ट्रेडिशनल और टेक्निकल दोनों को मिक्स करके हम R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। ऐसा ही नहीं कि वी हैव टू डू द रिसर्च ऑन द वैदिक स्क्रिप्चर्स विदाउट द टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्च ऐसा है कि आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। जहाँ फॉरेन कंट्रीज में अगर आपको डेटा कलेक्शन अगर मिलता है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट, है ना। अगर मान लीजिए कि अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी लाइक US में है या फिर लाइक UK में है या फिनलैंड में है, यू कैन डेफिनेटली कोलैबोरेट विद देम और अच्छा सा एक लाइक रिसर्च कर सकते हैं आप। एंड नो डाउट श्री महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज प्रोवाइडिंग द डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज इन ऑनलाइन, एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू on your education journey, and very like thankful to like Yogesh ji who had supported me in this particular podcast, and I wish everyone to have a like happy and healthy life, जहाँ ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है ना, अंक शास्त्र है, हस्तरेखा है। तो यहाँ से हम जान पाएंगे कि अच्छा और बुरा समय जो है उसको हम स्प्लिट अप करके अच्छे समय में क्या करना चाहिए, बुरे समय में क्या करना चाहिए, उसका एक ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उस ज्ञान से हम आगे बढ़ सकते हैं सोसाइटी में। वी कैन डू वेरी लाइक गुड थिंग्स इन द नियर फ्यूचर, और अच्छे सारे रिसर्च भी हम करेंगे। और इट इज वन ऑफ द लाइक जेन्युइन प्लेटफॉर्म जहाँ योगेश जी ने इतनी मेहनत की है कि हम जैसे लोग स्पिरिचुअल साइड में विद टेक्निकल सपोर्ट, आजकल लाइक टेक्निकल की दुनिया है, तो टेक्निकल सपोर्ट से हम लाइक आपको संपर्क कर पा रहे हैं। एंड इट इज वन ऑफ द like blessings for all of us to have you on this particular like platform to support us, और हमें अच्छा लग रहा है। और ये जो अंधविश्वास जो है उसके ऊपर ना जाए, डू नॉट बिलीव ब्लाइंडली, है ना। और इतना जल्दी भी कन्विंस नहीं होना कि कुछ टोटके बता दिए, उसको कर दिया तो ये हो जाएगा। आई डोंट बिलीव इन सच काइंड ऑफ रेमेडियल मेजर्स जो आपका काम यूं ही कर दे। नो लाइक मेनी मेनी हैव कम टू अस कि हमने ये किया वो किया, इधर पूजा की उधर पूजा की, लेकिन काम नहीं बन पाया। लेकिन जब भी ज्योतिषी अगर आपको कोई लाइक परिहार या फिर लाइक रेमेडी बताते हैं, देन वो योग देखते हैं, उसमें भी कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, है ना। तो डू नॉट बिलीव ब्लाइंडली, बट अगर आपको कोई भी सवाल है कि ये ज्योतिष शास्त्र हो या फिर वास्तु शास्त्र हो, इसके ऊपर बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यू रीड इट। पहले के जमाने में क्या होता था कि लिटरेसी रेट कम था, आज लिटरेसी रेट कम नहीं है। ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज हाउ टू रीड एंड राइट। तो आप पब्लिश्ड पेपर्स जो है उसको आप लर्न कीजिए, है ना। नो डाउट देर आर सम यूट्यूब चैनल्स, दे आर डूइंग गुड टू सर्व द सोसाइटी, है ना। बट माई रिक्वेस्ट इज आप पब्लिश्ड पेपर्स आप पढ़िए, पब्लिश्ड बुक्स है ना। हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन जो है लाइक श्री महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जैसे इंस्टीट्यूशन है, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफ इंस्टीट्यूशंस है ना, जो आपको लाइक प्लस और माइनस को डिफरेंशिएट करने में मदद भी कर सकता है ना। तो ब्लाइंडली बिलीव ना करें। अगर कोई डाउट है वास्तुशास्त्र के ऊपर, अगर आपको डाउट है तो वास्तुशास्त्र का ग्रंथ लेके पढ़िए। आपको लाइक ब्लाइंडली बिलीव करने से वो अच्छा है, पढ़ना अच्छा है कि आप जान लें, है ना। तो टू गेन द नॉलेज, yes, we are here, and there are many like eminent and energetic spiritual leaders जहां आप उन लोगों की बात सुन रहे हैं, और वो भी अच्छा है। यानी कि अगर गीता के ऊपर ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं वो भी अच्छा है। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि ये जो शास्त्र जो लिखे गए हैं, 4 वेद जो लिखे गए हैं, 18 पुराण जो है, 2 महाकाव्य महाभारत और ये रामायण, है ना। तो ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, इट इज फॉर एवरीवन, एंड देयर इज नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इट इज फॉर एवरीबडी, लर्निंग इज फॉर एवरीबडी। इसीलिए तो वसुधैव कुटुंबकम का एक जो शब्द जो है, वसुधैव कुटुंबकम का जो शब्द जो है, वो आप जान पाएंगे कि कोई एक दूसरे से फर्क नहीं है, सबकी जाति एक ही है, मनुष्य जाति है। सो व्हेन यू टॉक एज एन एजुकेटेड पर्सन, यू शुड अंडरस्टैंड
the way of life is already written by the sages. सप्त ऋषियों का आशीर्वाद है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, कई स्पिरिचुअल गुरुओं का आशीर्वाद है जो हमें ज्ञान दे रहे हैं. वो ज्ञान प्राप्त कीजिए और जिंदगी को बेहतरीन बनाइए. दैट इज व्हाट माय एडवाइस टू द करंट जनरेशन एंड अपकमिंग जनरेशन आल्सो. इट वाज अ वेरी नाइस पॉडकास्ट फ्रॉम योर साइड, और आपकी टीम का भी अच्छा सपोर्ट मिला हमें. योगी राम का जो यूट्यूब चैनल जो है वो और भी तरक्की करे, एंड आई विश यू गुड लक to you and your team. It was a pleasure for me and my team, and बहुत अच्छा लगा हमें एस्ट्रोलॉजी एंड रिसर्च स्टैटिस्टिक इन दोनों का कनेक्शन के बारे में. यूजुअली पीपल टॉक अबाउट अ साइड, बट यस दोनों को कनेक्शन, दैट वाज रियली ग्रेट. एंड मेरे ख्याल से जो भी व्यूअर्स हैं दे विल रियली एंजॉय दिस पॉडकास्ट. सो सर रियली थैंक्स अ लॉट वंस अगेन. Thank you so much. Jai Shri Krishna.